So yesterday we were talking about the end group analysis, and we were discussing about the determination of the N-terminal amino acid unit by using the DNP method or the Sanger's method. Are you able to see the Yes, sir. screen? And am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in DNP method, we are using this 2,4-dinitrophenolurobenzene as a reagent, which is also known as Sanger's reagent. When we treat a tripeptide or another uh, polypeptide with this reagent, okay, so this polypeptide get attached with this reagent through this amino group of the N-terminal amino acid, which upon hydrolysis in presence of an acid will produce a DNP derivative of the N-terminal amino acid and mixture of the another amino acid component of the peptide. And this DNP derivative of N-terminal amino acid can easily be characterized by comparing with the available data in the literature. Okay, so you will come to know which amino acid is present on the N terminus of the given peptide. But this method has a drawback or disadvantage that this method cannot be used for the determination of the overall sequence of the amino acid. We can't determine the overall sequence of the amino acid present in the given peptide. And reason for that, because we are getting mixture of the another amino acid present in the peptide chain except the N-terminal amino acid which uh, obtained in form of the DNP derivative. Okay, so if we are getting a mixture of amino acids, then we can't determine the exact sequence of these amino acids present in the mixture. Clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now we will discuss about this another method which is known as Edman method. And this method is superior over this Sanger's method. Okay. Reason I will let you know after completion of this uh, reaction and their mechanism. So you can see here in this method involves the reaction between a phenyl isothiocyanate. You can see this is the phenyl isothiocyanate. Okay, and the peptide at pH 8. So you have to maintain the pH 8, and this pH is slightly basic. So slightly basic medium हमें रखना है when we treat our peptide. Given peptide, it may be a tripeptide, it may be a tetrapeptide, or it may be another peptide. With this reagent phenyl isothiocyanate. ये दिख रहा है आपको phenyl isothiocyanate का structure? Yes, sir. You can Yes. see here it has two multiple bonds. Okay, one is between the carbon and sulfur, C double bond S, and another double bond is between nitrogen and the carbon. So if you compare their polarities, the bond between this carbon and sulfur is less polar compared to the bond between the carbon and nitrogen. Okay, so this bond is more polar, means the polarity of bond will be toward this nitrogen. So when this amino group of the peptide, given peptide, attack on this polar group, okay, then there will be negative charge and this hydrogen from this NH will shift to this position. And you will get, now, see, you can compare both these pH, this is phenyl ring, now this will become NH, and this C double bond S has been written here, C double bond S. Now there is a new bond formation between this nitrogen and this carbon. Okay, so this CN, this is the new bond formed after the reaction. Okay, in presence of the base pyridine use किया हुआ है, this will give you a pH value of around 8, and reaction was carried out between at temperature 40 degree. Now you can see the subsequent step. In this, a ring closure reaction takes place. So you can see here, this is an intramolecular nucleophilic addition reaction. That is not a substitution. कौन सी रिएक्शन हो रही है अब ये? इंट्रामोलिकुलर
Nucleophile is attacking this nitrogen, is a nucleophilic in nature. So this nucleophilic center will attack on this carbonyl group, producing this will become the OH, or you can say this will become the negatively charged, and here you will get the positive charge. Okay, so it will produce a cyclic derivative. So what we are getting here? We are getting a cyclic intermediate. समझ में आ रहा है? बहुत इजी है. देखिए ये नाइट्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया कार्बोनिल ग्रुप पे. अब आप देखिए जब यहाँ से नाइट्रोजन अटैक किया, इट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. Okay, and there is a new bond formation between this nitrogen and carbon. Whenever we are moving a electron pair, it will form a new bond. तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म है. नाउ दिस बॉन्ड पेयर C double bond O will shift to the oxygen, and because it is getting a additional electron pair, so it will get the negative charge here. तो ये हो गया O नेगेटिव, ये हो गया NH प्लस, और बाकी आपका देखो एज इट इज है. ये N के साथ में C डबल बॉन्ड S, इसके बाद ये NH हो गया, इसके बाद ये CHR, और बाकी ये CO है जो हमारा O नेगेटिव हो गया. Is that clear to everyone? Yes, sir. कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे इस स्टेप में? नो सर. ठीक है. नाउ मैंने आपको कई बार ये वर्ड रिपीट किया, रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी. रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी क्या होती है? अब आप देखो यहाँ पोलरिटी क्या है. CO में O इज नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. तो पोलरिटी किसकी तरफ है? ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ. And what is called reversal? What is called reversal of polarity? This polarity will get reversed. ये रिवर्स डायरेक्शन में आ गई polarity, forming a double bond. रिवर्स क्यों हो रही? Because this formation of the double bond provides a driving force. यहां से इसको driving force मिला due to reversal of the polarity. It will become C double bond O, and this bond will break from here. CN bond. CN bond will break from here. So this will become N negative. NH नेगेटिव हो गया. ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बिकॉज वी आर मूविंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड द नाइट्रोजन. तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ. नेगेटिव चार्ज पे जो आपका यहां से ये बिकॉज NH इज पॉजिटिव, तो बॉन्ड पेयर इज टुवर्ड द, कहां पर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर? H की तरफ है. ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टू द नाइट्रोजन एंड इट विल न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज. तो ये H प्लस की फॉर्म में यहां से रिलीज होगा. जब ये H प्लस की फॉर्म में यहां से रिलीज होगा, यहाँ पे क्या था? ये NH नेगेटिव, सो दिस विल बिकम द NH2. क्या बन जाएगा? NH2. अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो. आप नोटिस करोगे एक चीज, आपको पता चलेगा. ये जो हमारा NH जो बन रहा है, ये कौन सा यूनिट है हमारी? देखो फर्स्ट यूनिट जो हमारी थी अमीनो एसिड की, उसने यहाँ से NH से अटैक किया था, अटैच हो गया था यहाँ पे फिनाइल आइसोथायोसाइनेट के लिए. फिर ये CHR, ये फर्स्ट अमीनो एसिड यूनिट है. CO, यहाँ पे हमारी फर्स्ट अमीनो एसिड यूनिट खत्म हो जाती है, और यहाँ जो NH है, यहाँ से सेकंड अमीनो एसिड रेजिड्यू स्टार्ट हो जाता है. NH CHR CO. ठीक है. Yes, तो sir. आप देख रहे हो ये जो हमारा जब ये यहाँ से डिटैच होगा, ये अलग सर होगा. वॉइस तो ब्रेक हो रही है आपकी. एक मिनट, वॉइस कैसे ब्रेक हो रही है? नेटवर्क तो ठीक है. हाँ, अभी आ रही है क्लियर आवाज? Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो आप यहाँ पे जब नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड था, जो एन टर्मिनल अमीनो एसिड था, उसने तो ये साइक्लिक डेरिवेटिव बना लिया, which will produce this cyclic derivative and it will detach itself from the rest of the peptide chain. बाकी जो पेप्टाइड चेन है वो आपकी यहाँ पे NH2 होकर के फ्री हो जाती है. ओके, बट दिस पेप्टाइड चेन विल हैव द वन अमीनो एसिड लेस देन द पेरेंट चेन. पेरेंट कौन सा था हमारा? ट्राइपेप्टाइड. सो यहाँ पे क्या रह जाएगा? ये डाइपेप्टाइड. अब Dipeptide. देखो ये फाइनल प्रोडक्ट आप देखो यहाँ पे, ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा जो साइक्लाइज होकर के ये बन गया, ये क्या बना? 3 phenyl 2 थायोहाइडेंटोइन. जो ये थायोहाइडेंटोइन बना, इट इज ऑफ द एन टर्मिनल अमीनो एसिड. किसका बना है थायोहाइडेंटोइन? ऑफ द एन टर्मिनल अमीनो एसिड. एंड द रिमेनिंग चेन with one amino acid less will get as it is. Okay, it will remain intact. So you can see here this peptide bond is not getting
break down, it's not breaking in this process. जैसा हमारे अभी सेंगर्स मेथड में हमने देखा था, वहां पे जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स थे दे वर ब्रेकिंग, बट हियर दे आर इंटैक्ट। ठीक है, अब इसका क्या एडवांटेज होगा, देखो कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड को। वी आर गेटिंग दिस 2-thiiohydrantoin and we are not doing this reaction for the first time. Researchers have already done this reaction, so we will report, we will find out their literature values, literature data, चाहे आप स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा देख लीजिए, इसका एनएमआर डाटा, आईआर डाटा, ठीक है, या कोई अदर डाटा, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इसके मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसके कलर से, आप इन सारे डाटा को जब कलेक्ट करके व्हेन यू विल कंपेयर दैट विद द लिटरेचर डाटा, यू विल कम टू नो द थायोहाइडेंटोइन फॉर्म फॉर विच पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, किस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का ये थायोहाइडेंटोइन आपका बना है, यू विल कम टू नो वेरी इजिली बाय कंपेयरिंग द लिटरेचर डाटा। तो ये आपको पता चल गया, आपने पता कर लिया कि आपके जो ट्राइपेप्टाइड जो आपको गिवन था उसके एंड टर्मिनस पर ये फिनाइल एलानिन अटैच, अगर ये R1 हमारा CH2PH हो, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फिनाइल एलानिन, दिस विल बी थायोहाइडेंटोइन डेरिवेटिव ऑफ द फिनाइल एलानिन। सो थायोहाइडेंटोइन डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल एलानिन, जो उसका हमारे पास डाटा होगा जो हम कैरेक्टराइज करेंगे, वी विल कंपेयर दैट विद द लिटरेचर, तो हमें इजीली पता चल जाएगा, इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक बात, दूसरी बात इसमें क्या हुई कि जो अब हमारे पास जो पेप्टाइड है विच इज इंटैक्ट, देयर पेप्टाइड बॉन्ड्स हैव नॉट broken down during the process, can be subjected to the process again। अब हम इसको फिर से सेम रिएक्शंस के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं दोबारा से। जब हम इस डाइपेप्टाइड के साथ में करेंगे, वी विल गेट थायोहाइडेंटोइन ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड यूनिट। ओके, सो दिस वे we can find out the overall sequence of the given peptide. So that is the beauty of this method, or this is the advantage of this method over the Sanger's method, because this method can be used repeatedly to find out the overall sequence of the amino acid present in the given peptide. Is it fine? Yes, sir. समझ में आ गया दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या बेनिफिट, कौन सा है बेनिफिशियल है, कौन सा सुपीरियर है। इफ somebody will ask you which method is superior, either एडमैन और सेंगर्स, एक्सप्लेन, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो और आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हमारे सिलेबस में है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड present in the given peptide. Now see the identification of the C-terminal amino acid. C-terminal amino acid का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, जैसे अभी हमने N-terminal का किया, अगर हमसे कोई कहे कि हमें तो C-terminal amino acid का पता करना है कौन सा है, तब हम कैसे करेंगे। Then we have this thioohydrantoin formation method। कौन सा मेथड है पहला, thioohydrantoin formation। तो दिस मेथड इज एनालॉगस टू एडमैन्स मेथड, जो हमने अभी एडमैन मेथड किया था उसी के एनालॉगस मेथड है, बट यहाँ पे जो थायोहाइडेंटोइन जो फॉर्म होगा, इट विल बी ऑफ द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड रादर देन ऑफ द एन टर्मिनल एज वी आर गेटिंग इन एडमैन्स मेथड। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। तो यहाँ पे रिएजेंट भी थोड़ा अलग होगा, देखो कैसे द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड इज converted into a thiohydrantoin by treating with ammonium isothiocyanate। वहां पे हमने क्या लिया था, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, यहाँ पे रिएजेंट क्या है, अमोनियम आइसोथायोसाइनेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो थायोहाइड्रेंटोइन इज लिबरेटेड और एलिमिनेटेड बाय द फ्री कोल्ड एल्कली एंड आइडेंटिफाइड। तो हम जो थायोहाइड्रेंटोइन जो हमारा बनेगा उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे फ्रॉम द रिमेनिंग चेन इन प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड एल्कली। कोल्ड एल्कली क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, बट इट विल डिटैच
the thioidentin of the C-terminal amino acid from rest of the peptide chain. ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने से पहले हमें जो अमाइनो ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट इट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, तभी हम सी टर्मिनल को कर पाएंगे. सो फ्री अमाइनो ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट. तो ये हमारे पास एक ट्राइपेप्टाइड है. We are having this tripeptide which is containing these three different groups R1, R2 and R3, and we have done this protection using the benzoyl group. So benzoyl protection हमने यहाँ पे कर लिया. इसके बाद when we treat this with the ammonium isothiocyanate, that is the reagent here, और ammonium isothiocyanate का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. Again you can see here that there are two double bonds between the carbon and sulfur and nitrogen and carbon, and this bond is more polar. So जो हमारा carboxylic group है, as a nucleophile this will attack on this CN bond, so there will be negative charge here, and you will get this cyclized derivative. जैसे हमने भी cyclization किया था उसमें एडमेन के केस में किया था, सिमिलरली यहां पर भी हमारा cyclization होगा, and we will get this cyclized intermediate. ठीक है, तो हमारे पास जब ये साइक्लाइज बन गया, साइक्लाइज बनने के बाद व्हेन वी डू दिस हाइड्रोलिसिस विद कोल्ड NaOH सॉल्यूशन, यहां पे आपको हीटिंग यूज नहीं करनी है. हीटिंग करेंगे तो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाएंगे. सो वी आर सपोज टू यूज हियर कोल्ड NaOH सॉल्यूशन. तो जब आप कोल्ड NaOH सॉल्यूशन से करोगे तो हमारा जो सी टर्मिनल अमाइनो एसिड है, यू विल गेट थायोहाइडेंटोइन ऑफ द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड and remaining peptide chain with amino acid unit less than the parent. So these two products will be there. Now if you want to repeat this process for the determination of the overall sequence, you can. If you repeat that, we will get the thioidentoin of the next C terminal amino acid. Likewise we can do for another amino acid if present in the given peptide. So this can be compared with the literature data to identification, for the identification purpose. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया ये मेथड? Yes, sir. ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल जैसे आपने एडमेन में किया, बस यहाँ पे फिनाइल आइसोथायोसाइनेट की जगह अमोनियम आइसोथायोसाइनेट है, which will react with the C terminus of the given peptide. एक ये एंजाइमेटिक मेथड है हमारे पास. We are having this another method which is an enzymatic method, and we are using here carboxypeptidase enzyme. तो carboxypeptidase enzyme क्या करता है? It will break the peptide bond between the C terminal amino acid unit. जो आपके पास given peptide होगी, peptide chain, carboxypeptidase enzyme के साथ अगर आप इसको ट्रीट करेंगे, this carboxypeptidase will break the amide or the peptide bond between the C terminal amino acid and their previous unit, amino acid unit present in the given peptide. ठीक है, so here you are getting a peptide with one amino acid unit less than the parent and the free amino acid. तो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसका हमें कोई मैकेनिज्म वगैरह कुछ पता नहीं होता. ठीक है, तो डायरेक्टली हम कैसे एनालाइज करते हैं? बाय गेटिंग द प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे आपको फ्री अमीनो एसिड मिलेगा. अभी फ्री अमीनो एसिड है तो आप इसको तो आराम से आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड है. ठीक है, तो ये हमारा एंड ग्रुप एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर. Yes, sir. अब बहुत बेसिक चीज है. बेसिक चीज आप अगर 10 मिनट, हाँ भाई तो है हमारे पास टाइम, आप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. बहुत बेसिक चीजें हैं. Structure of the protein, primary structure, secondary structure and tertiary structures and quaternary structures. So most of you are from the biological background, so you can easily understand that. ठीक है, तो आपको पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है. हमारी जो प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? Who will tell me? अभी तक जो हमने किया है ना, जो भी डिस्कशन जितना भी किया है, वी हैव डन दैट विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? इट इज ए लीनियर स्ट्रक्चर. ठीक है, एक चेन स्ट्रक्चर है विच हैज ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स. जो एमाइड लिंकेज है बस सिर्फ इसके बीच में. कौन से बॉन्ड्स है?
peptide bonds. A linear chain of a peptide is called the primary structure of a protein. It's a very simple thing. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या आता है? ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। और अगर कोई अमीनो एसिड है जिनमें अपने खुद के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं या डाइसल्फाइड ब्रिड्स हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज दिस linear chain structure of the peptides are or polypeptides are called the primary structure of the proteins which have only amide linkage or peptide bonds. सर हाँ सर आपने अभी कहा कि अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे तो वो अलग बात है। जैसे हम ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो उसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो क्या वो मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा? नहीं, अगर उसमें कोई अदर बॉन्डिंग नहीं है तो, जैसे कि उसमें अगर दो चेन है अगर आपकी, ठीक है, अगर वो डाइसल्फाइड ब्रिज से ही अगर बनी हुई है, दोनों में खाली डाइसल्फाइड लिंकेज है, उसके अलावा देयर इज नो अदर इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल अदर इंटरेक्शंस, तब तो वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में कंसीडर होगा, ठीक है। इफ इट इज हैविंग अनदर बॉन्डिंग लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आपकी जो आयनिक इंटरेक्शंस है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस है, वो मैं भी आपको सब्सिक्वेंट सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है, तब वो आपके सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्लासीफाई होगी। अगर खाली डाइसल्फाइड ब्रिज है तब कोई इशू नहीं है और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू सर। तो आप देखो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वी आर हैविंग ऑफ द टू टाइप्स। पहले तो ये समझ लो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली वी आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट मे बी इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर इन एडिशन टू द पेप्टाइड बॉन्ड्स। हाँ, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स तो हमारे होते ही, हमको पता है जब पेप्टाइड्स है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स या हमारे एमाइड लिंकेज होंगे। इफ वी आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एडिशन टू दिस टाइप ऑफ द बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा अगर हमारे पास है, देन इट विल मेक द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मे बी इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, so depending upon that we are having two type of structure, alpha helix and beta pleated sheet structure. तो alpha helix क्या है? if there is intramolecular hydrogen bonding means within the आपके जो एक जो पेप्टाइड चेन है, if there is hydrogen bonding between this peptide chains, linear chain, then this form the alpha helix structure. तब कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक इन केस ऑफ द डीएनए की भी हम हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें जिस तरह से हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हमारे पास है तो ये क्या होगा, जैसे आपका अपर टर्न है, इफ अपर टर्न फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द लोअर टर्न में, देखिए आपके अपर टर्न में सपोज करिए NH है, NH ग्रुप हमारे पास होता है इन द अमीनो एसिड यूनिट्स, and in the lower turn we are having the CO groups, so this NH and CO will form the hydrogen bonding. So can anybody tell me in which type of groups we are having hydrogen bonding? कौन बताएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह तो नहीं होती, कहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर F और N प्रेजेंट जहाँ होता है, F और N के बीच में होती है FON, सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ओके, अगर आपके पास दूसरा जो है जिसके साथ आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, इफ दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद कार्बन, विल इट फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जैसे मान लो कि आपने एक तो नाइट्रोजन के साथ आपने दिखा दिया NH दिखा दिया, OH दिखा दिया, FH भी मान लो आपका है, HF भी है, विल इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द CH बॉन्ड? नो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं करेगा ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ये होती है, इट इज ए बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एटम अटैच विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक चीज समझ लेना आप, किसके साथ अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन एटम हमारा? विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया। एंड
किसके साथ करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म? इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसके साथ करेगा? विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे ये NH, ये पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई कि हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and it will form hydrogen bonding with the another electronegative atom oxygen। ये अगर यहाँ पे C के साथ में H अटैच होता तो HH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती ना। या फिर मैं इसका अपोजिट कहता कि जैसे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन अटैच है, वो कार्बन के साथ अटैच है, देन देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास में कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम इट शुड बी अटैच विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, कार्बन के साथ नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इन our case, in case of the peptide chain, we are having this type of bonding in which this nitrogen is having a hydrogen attached with that, and this hydrogen attached with the nitrogen can form hydrogen bonding with the carbonyl group CO, where oxygen is electronegative. So if NH group of the 1 ton get form a hydrogen bonding, can form a hydrogen bonding with CO of the another ton। तो इस तरह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, इट विल बी हेलिकल स्ट्रक्चर। So this helical structure is called the alpha helix, alpha helical structure और alpha helix structure। तो ये आप देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, केमिस्ट्री की फॉर्म में भी दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी, कि हमारे पास जो अमीनो एसिड की चेन किस तरह की होती है, CONH, देन CH और R ग्रुप अटैच होता है, फिर वापस से CO होता है। ठीक है, फिर दूसरा टर्न स्टार्ट हो जाता है, दूसरे टर्न में जो हमारे पास NH होगा इट विल फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये हमारी होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फॉर्म हो रही है, विच इज कॉल्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। नाउ सी द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू चेन, जो कि आपकी पैरेलल हो सकती है या फिर एंटी पैरेलल चेन्स हो सकती हैं। तो जैसे हमारे पास एक टन के अंदर CO ग्रुप है और दूसरी चेन के अंदर जो NH है, so they can form the hydrogen bonding, okay, so they will form a beta plated sheet structure through this hydrogen bonding। तो ये आपका जो अरेंजमेंट दिख रहा है, आप देखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों टाइप का हो सकता है, ये एंटी पैरेलल हो गया। अब आपका जो यहाँ पे CO था उसके बिल्कुल दूसरा जो टर्न हमारा होता है CHRNH से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो टर्न था ये N टर्मिनस से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम RCHCONH। So both the turns, both the chains are running in anti-parallel direction। तो दोनों तरह से ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है सर, और कंडीशन, हाँ बोलिए सर उधर तो ऊपर दोनों साइड पे वो एन टर्मिनल लिखा हुआ है, तो ये एंटी पैरेलल कैसे हो? नहीं, इधर दोनों तरफ एन टर्मिनल वो गलती से लिख दिया होगा ना, एंटी पैरेलल। एक मिनट रुक जाओ, जो हमारा एन टर्मिनल शुरू होता है CONH से शुरू होता है ना, NH CR, फिर ठीक है, ये सर जहाँ पे NH वाला ग्रुप होता है। हाँ नाइट्रोजन वाला होता है ना। देखो यहाँ पे अगर हम मान के चले, इसको छोड़ दो आप, CONH, तो वैसे ये हमारा C टर्मिनस हो गया इधर, है ना, C टर्मिनस हो गया इधर, हमारा ये N टर्मिनस हो गया, वो गलती से लिख दिया है इन्होंने, है ना, एक तरफ इसको C सही कर टर्मिनल लेना। और एक तरफ N हाँ हाँ, होगा। ये C यस सर। टर्मिनस हो गया ना, इसको C टर्मिनस कर यस सर। लेना, क्योंकि बुक नीचे तो देख लिखा हुआ है, इसने C टर्मिनस लिखा हुआ है, उसने उल्टा लिख दिया है ना, ये ऊपर यहाँ पे C टर्मिनस आएगा, यहाँ N टर्मिनस आएगा, इसमें दोनों में N टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर या फिर जो हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारी फॉर्म होते हैं। तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हमसे कोई शॉर्ट नोट में पूछता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो हम बता देंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर कंटेन ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स और एमाइड लिंकेज, बट in addition to that in secondary structure we are having hydrogen bonding, it may be intramolecular or intermolecular। ठीक है, depending upon that we have two type of structure, alpha helical and beta plated sheet structures। तो आप ये स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इसके बाद आते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की बात। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होगी फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर? सो इन दिस स्ट्रक्चर इट इज complicated structure. Okay, in this we are having another bondings involved. कौन कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? वांडरवाल सर इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकती है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हाँ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सर डाइसल्फाइड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बॉन्ड भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन्वॉल्व हियर, ठीक है। क्योंकि हमारे देख रहे हैं कि इसके जो हमारी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है। सो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो देयर विल बी आयनिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, या फिर कुछ हमारे जो साइड चेन्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस होती है, जिसमें हमारे जो प्रोटीन के जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो कहां होता है? टुवर्ड द आउटसाइड, ठीक है, ओरिएंटेड आउटसाइड द कॉइल। जो हमारा एक कॉइल फॉर्म हो रहा है उसके आउटसाइड होते हैं, सो दैट एंड दे विल मेक इट, कैसे हो जाएगा? ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक होंगे दे विल इन द इंटीरियर ऑफ द कॉइल। इस तरह से हमारे इसमें डिफरेंट इंटरेक्शन, जो अब दो चेन्स हैं तो उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं। आप देखते हो ना जो कर्ली हेयर्स होते हैं लोगों के, कैसे होते हैं कर्ली हेयर्स? बिकॉज ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स अगर किसी के ज्यादा है बॉडी में, तो उसके जो हेयर्स होंगे वो हमेशा कर्ली होंगे, चाहे आप उनकी कितनी बार भी कटिंग करा लो वो हमेशा कर्ली होंगे, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ज्यादा होता है। और आर्टिफिशियल जो कर्लिंग जो करते हैं हेयर्स की, उसमें भी सल्फर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर हो गई। नाउ इफ यू सी द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है फ्रॉम द टर्सरी स्ट्रक्चर? द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कंटेन, हाँ बोलिए। सर स्पेशियल अरेंजमेंट का उसमें मतलब डिफरेंस होता है सर? ना, स्पेशल का नहीं होता इस, वैसे बेसिकली इट इज अ सर इसके टर्सरी। अंदर सर इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन सब यूनिट्स एसोसिएट हो जाते हैं। नहीं नहीं सर नहीं, वो सर भी तो नहीं। जो सब यूनिट्स होते हैं ना, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से मतलब एक साथ हो जाते हैं, तो ढेर सारे यूनिट्स का एक्युमुलेशन रहता है इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर। बेसिकली जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इट इज अ टर्सरी स्ट्रक्चर, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है? इट हैज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड along with the tertiary structure of the protein, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकता है? ये आपका कोई मेटल आयन भी हो सकता है, या आपका कुछ और कोएंजाइम्स भी हो सकते हैं। तो इन एडिशन टू दैट, in addition to the tertiary structure of the protein, we are having a prosthetic groups। जैसे आप ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? कौन सी वो होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। लेकिन इसमें साथ साथ में क्या होता है कि हीम इसके साथ अटैच होता है विद 4 पेप्टाइड चेन्स। तो जो यस पेप्टाइड सर। है, पेप्टाइड तो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर में ही होता है, ठीक है। बट बिकॉज इट इज अटैच विद दिस हीमोग्लोबिन विच इज हैविंग ए मेटल आयन एंड पोरफायरिन रिंग, ठीक है ना, वही होता है ना हीमोग्लोबिन में। सो विच इज मेकिंग ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो टर्सरी स्ट्रक्चर प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप विल मेक द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तब इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज कंसिडर्ड एज ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, आप ये मान सकते हो फिर, ठीक है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं इसमें। ये देखो ना, these subunits are held together by same kind of interaction that held the individual protein chain in particular 3 dimensional structure। तो 3D में हमारा होता है, जो टर्सरी स्ट्रक्चर में हो रहा था वही सब कुछ है। दे आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वही सारी है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन डिस्क्राइब द वे द सब यूनिट आर अरेंज्ड इन स्पेस। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ द 4 प्रोटीन चेन फिटेड टुगेदर टू फॉर्म ए ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे 4 चेन्स है, तो उससे वैसे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। 4 चेन्स है तो ऑब्वियसली अपना डिफरेंट अरेंजमेंट में अपना स्पेस में होंगी, दे विल शो डिफरेंट अरेंजमेंट, बट ज्यादा उससे मतलब नहीं। अगर आप कोई और भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखोगे देन देयर विल ऑलवेज बी ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एडिशन टू द प्रोटीन, ठीक है।
तो ये हमारी चारों स्ट्रक्चर्स हो गए. नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट. यस सर. तो कल तो हमारी छुट्टी रहेगी, है ना? Yes, sir. यस सर, गजेटेड ठीक- हॉलीडे होगा शायद. ठीक है. तो अटेंडेंस का ले लीजिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स. डन सर. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच. नाउ यू कैन लीव. Thank you. थैंक यू सर. हैव अ नाइस डे सर. Thank you, ठीक है. sir. नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे. आप पढ़ के आना पहले से, है ना? Okay, sir. यस सर. ठीक. Okay, sir. Thank you, sir. यू वेलकम.